Yeah, praise God. Yeah, we praise God for this morning. प्रभु की स्तुति और सुंदर सवेरे के लिए, Not just because it is a new year, इसलिए नहीं कि ये नया साल है, because the Lord is good all the time. क्योंकि परमेश्वर हर समय भला है। No matter how evil we become, the Lord is always good. हम कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, फिर भी हमेशा परमेश्वर अच्छा है। And by the grace of God, we want to focus on something which the Lord really builds us on, the church. और हम परमेश्वर की दया से कुछ चीज़ों पर प्रकाशन डालने का प्रयत्न करेंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है। The most important thing the Lord looks for in a church is those who are really broken and humble. परमेश्वर कलीसिया में विशेष उन लोगों की इच्छा रखता है जो हृदय से टूटे हुए हैं और दीन हैं। I mean, we are not humble just because others think that we are humble. हम इसलिए नम्र नहीं है क्योंकि दूसरे सोच रहे हैं हम नम्र हैं। No, some of us can be overexcited when somebody says, that brother, that sister is humble. और हो सकता है कोई जब ये सुने कि यह भाई ये बहन बहुत ही नम्र है तब वो ज़्यादा उत्साहित हो जाए उनके विषय में सुनने पर। No, I am the biggest fool if I think I am humble because somebody gives a testimony that I am humble. और यदि कोई मेरे विषय में साक्ष्य देता है कि तू नम्र व्यक्ति है और इससे मैं संतुष्ट होता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मैं ही हूँ। If the Lord God Almighty who watches us all the time, if He gives a testimony that brother, that sister is humble, only then that is genuine. जब महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह गवाही दे कि यह भाई यह बहन नम्र है, तब ये संतोषजनक साक्ष्य है। In Psalm 113, भजन संहिता 113 में there we read one of the characteristics of God. वहाँ परमेश्वर का एक स्वभाव के विषय में हम जानते हैं। Psalm 113. भजन संहिता 113, It says, verse 4, the Lord is high above all nations and His glory is above the heavens. यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। And verse 5, who is like the Lord our God who is enthroned on high? हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। So we are talking about our God who is highly exalted, He is great. और हम उस परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ऊंचा और महान है। And do you know what it says in verse 6? और 6वें वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। It says, He humbles Himself to behold the things that are in heaven and on earth, and He raises those who are needy and those who are poor. और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। Now can we just imagine this, Almighty God, why does He have to humble Himself? Verse 6. और जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या आप विचार कर सकते हैं कि क्यों वह अपने आप को इतना दीन करता है? No, that is the character of God. यह परमेश्वर का स्वभाव है। That just think of this Almighty God who doesn't have any sin in Himself. He is absolutely perfect. It says He humbles Himself. और विचार कीजिए, वह परमेश्वर जिसमें कोई भी पाप वास नहीं करता, पूर्ण रीति से सिद्ध परमेश्वर है, वह कहता है मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। And in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, और दो इतिहास इसका 7वां अध्याय और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, there it says, if my people who are called by my name, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, and the very first thing there it says is those who humble themselves. और वहाँ पर लिखा है जो यदि वे अपने आप को दीन करें। Or in other words, it's in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. There it says, God says, if my people who are called by my name. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, Or in other words, the people who are called by God's name, the name of God is Christ, those who are Christians, the very first thing, the very first character is they will humble themselves. और पहला गुण उन लोगों का जो मसीह कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत में केवल यीशु ही है, और जो यीशु के नाम से मसीह कहलाते हैं उनका पहला गुण है वे अपने आप में दीनता रखें। That is one of the first characteristics of a true Christian, of a true child of God. और सच्चे परमेश्वर के जन और परमेश्वर के बेटे के बच्चे के पहले गुण यह है कि वह दीन और नम्र हो। Now, just like when we were born to our parents, we get some of their characteristics. और जैसे ही हमारा जन्म होता है इस पृथ्वी पर शरीर में, तब हमारे अंदर कुछ अपने माता पिता के अनुसार स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। Sometimes people tell us, you resemble like your father, you behave like your mother. और
हम जानते हैं कि कोई लोग हमें कहते हैं कि तू अपनी माँ के जैसा दिखता है और तेरा स्वभाव कुछ आचरण अपने पिता के जैसा है। That is because we are physically born to our parents. यह इसलिए क्योंकि शारीरिक रीति से हमने उनके द्वारा जन्म लिया है। The same way, if we are really born of God, we are born again. When we are born of God, we will have this characteristic, that is humility. We will go down and humble ourselves. और इसी तरह यदि हमारा नया जन्म हुआ है, हम आत्मिक रीति से नए जन्मे हैं, तो पहला गुण हमारे अंदर परमेश्वर का हमारे अंदर दिखेगा कि हम नम्र और दीनता में चलेंगे। And as the years pass by, that we will have more and more of humility in our lives. और जैसे तुम्हारा जीवन नए जन्म के बाद आगे आगे बढ़ेगा, वैसे ही तुम अपने अंदर और ये नम्रता और भी दीनता पाओगे। And if we don't have that humility in our life, it just proves we are not born to God. और यदि यह गुण हमारे अंदर कार्य करते हुए नहीं दिखता, तो यह सिद्ध है कि हम परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हुए नहीं हैं। And I was thinking, asking myself, Lord, what are the marks that I really am humbling myself? I'm really broken before you. और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर ऐसे कौन सी बातों के चिन्ह है मुझ में जिससे मैं जान पाऊं कि मैं सच में टूटे हुए हृदय का या दीन व्यक्ति हूं। Because I don't want to deceive myself having a false humility before other brothers and sisters on Sundays. क्योंकि मैं अपने आप को धोखा देना नहीं चाहता कि रविवार के दिन और भाइयों और बहनों के साथ बहुत दीनता और नम्रता में चलकर, Just being soft spoken or putting the head always down is not humility. That's how I understood in the past in my foolish days. और जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मेरे पुराने दिनों में मैं नम्रता और दीनता इसको इस तरह से समझता था, अगर हम बहुत ही सौम्य रीति से छोटे आवाज में बात करते हैं और लोगों के सामने अपनी गर्दन झुकाकर चलते हैं, मैं इसे नम्रता समझता था। ये मेरी मूर्खता थी। Yeah, I just want to share 4 marks that I can examine myself, we can examine ourselves, that we are really broken before God and humble. और 4 बातें ऐसा मैं आपको बताऊंगा जिससे हम जान सकते हैं कि सच में हम टूटे हुए हृदय के या नम्र व्यक्ति हैं या नहीं। And we all know that the first mark is that it's written in Matthew 18. But we don't have the time, you can read it when you're free. In Matthew 18, the very first verse, it's the disciples came to Jesus and asked, Lord, who is the greatest in the kingdom of heaven? और पहला चिन्ह जो हम जानते हैं मत्ती 18वें अध्याय में है कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, हे परमेश्वर प्रभु, हमारे बीच में सबसे महान व्यक्ति कौन है? And that parallel passage, if you read in Luke's gospel, it says there was an argument that arose among the disciples who should be the greatest. और आगे हम पढ़ते हैं इसी के समान, जब चेलों के अंदर वाद विवाद छिड़ गया कि वह अपने आप में वाद विवाद करने लगे, हम में सबसे बड़ा महान कौन है? Yeah, whenever there is an argument between husband and wife or a brother, sister, it is because they want to be the greatest. और जब कभी भाइयों में, बहनों में या पति और पत्नी में, परिवार में वाद विवाद होता है, उसका कारण यह होता है कि वे अपने आप को महान है ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। So in Matthew 18:1, the disciples came. Probably they were thinking themselves, the Lord would obviously point to us. We left everything to follow Jesus. So the Lord will say, you're the humblest people. और जब चेले आपस में हम में से कौन महान है इस पर वाद विवाद करने लगे, तब उन्हें लगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर यह कहेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र और दीन व्यक्ति आप लोग हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे But चले I गए। believe the disciples were miserably disappointed. और मैं जानता हूं कि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास द्वारा पता चला, तब उनकी अवस्था बहुत ही दुखित हो गई। Because I believe, we read the further verses down, he did not select one of them, he selected a little child and said, those who humble themselves like this child are the greatest. सब प्रभु यीशु ने, हम सब जानते हैं, उनसे यह कहा, किसको भी परमेश्वर ने प्रशंसा नहीं दी, लेकिन एक छोटे बच्चे को उनके बीच में उठाकर यह कहा कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान दीन करेगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान होगा। The same way in our church here in Pune, the greatest people are those who humble themselves in their secret life. इसलिए इसी तरह हमारे इस पुणे की कलीसिया में भी महान व्यक्ति वे ही हैं जो अपने परिवार में हर जगह अपने आप को दीनता में चलाते हैं, Like a little child. एक बच्चे के समान। Little children, have we noticed one thing about them? और एक छोटे बच्चों में क्या आपने एक बात को जांचा है कभी? You go for any church meeting or any get together or any birthday party, the little children, they are the easy, they get along easily with each other. They play with others, they sing, they don't find it difficult to get along with each other. They so easily gel with other children. और अगर आप किसी भी पार्टी, बर्थडे पार्टी में चले जाएं या कलीसिया में चला जाएं या दूसरी कोई कलीसिया में चला जाएं, तो आप बच्चों में एक खूबी पाते हैं कि वे सब बच्चे एक दूसरे के साथ मेलजोल तुरंत करने में अपने आप में कोई भी अड़चन नहीं पाते। They don't know each other's name, they may not even know how to speak, but they get along so happily, they run around. That is because they have a humble heart.
क्योंकि उनका हृदय नम्र रहता है। इस कारण से वे एक दूसरे का नाम न जानकर भी एक दूसरे के साथ मेल जोल में बहुत ही तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। They don't have any bitterness, any hatred towards somebody. No, I don't want to talk to that person. Nothing of that sort. और बच्चों के हृदय में किसी के प्रति नफरत या किसी के प्रति जलन वैर नहीं रहता है कि मैं इस बच्चे से बात नहीं करूंगा। It's we who are adults who are arrogant and proud, with our long faces, pharisaical attitude, who maintain a distance with others. और ये हम बड़े वृद्ध लोग हैं जो अपना मुंह मिलान बनाए रखते हैं और किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखकर कहते हैं कि मैं इससे बात नहीं करूंगा। Yeah, in this new year, I want to learn from the little children the humility of the Lord. और इस नए वर्ष में मैं चाहूंगा कि परमेश्वर जो सिखाना चाहता है बच्चों के द्वारा नम्रता मैं उसे अपनाऊं। Others should find it very easy to come and fellowship with me. और सब लोग मुझसे आकर संगति करने में बहुत ही आसानी बिना रुकावट के मेरे साथ संगति कर सकें। I believe that is the first mark that we are really humble, that we become like little children, that we don't keep a record of the wrongs others have done to us. और इसी तरह बालकों के समान पहला दीनता का और एक प्रमाण है कि बच्चे जो बुराई का लेखा नहीं रखते कि इसने मेरे साथ ये बुराई की और वे उसे याद नहीं रखते, वह दीनता का पहला प्रमाण है। And the second mark that we are really broken and humble before God is that we will never despise others. और दूसरा चिन्ह पहचान कि हम नम्र है या नहीं, कि हम दूसरों को कभी तुच्छ नहीं जानेंगे। Yeah, we read that in Luke chapter 18. और हम इसे लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। I mean, we all know that story, that two people, the tax collector and the Pharisee, they went to pray to the temple. और हम सब जानते हैं ये वाकया जहाँ मंदिर में एक फरीसी और एक जकात वसूल करने वाला आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। And the Pharisee was comparing himself with, I'm not like this person, I'm not like that person, I'm not like the other person. और फरीसी हम सब जानते हैं कि वह तुलना कर रहा था अपने मन ही में कि मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के जैसा बुरा नहीं हूँ। Yeah, when we are not broken, when we are not humble, we will compare with this brother and that sister. और जब हम सच में अपने टूटे हुए हृदय के लोग नहीं हैं, नम्र लोग नहीं हैं, तब हम लगातार अपनी तुलना इस भाई इस बहन से, इन लोगों से अपनी तुलना करते रहेंगे। I thank you, Father, that I'm having a happy married life. My life is not miserable like the other family there. और हम मैं परमेश्वर से यह कहेंगे, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरी वैवाहिक जीवन बहुत संतुष्ट और आनंदमय है, दूसरे व्यक्तियों के समान दुखद नहीं है मेरा। I thank you, Father, that I've overcome the lust of the eyes and anger. I'm not like the other person who is enslaved to pornography. और हम परमेश्वर से यह कहेंगे, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं आंखों की अभिलाषा से मुक्त पाकर जय पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी और व्यक्ति के समान नहीं हूँ जो चित्रों में अश्लीलता को ढूंढता है और वह देखना पसंद करता है। That is a person who is not broken yet. और यह व्यक्ति है जो अब तक पूरी रीति से टूटा नहीं है। And you remember the tax collector? और हम जानते हैं कि जकातदार ने क्या कहा। He did not compare himself with anybody else. उसने अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की। Because he thought, Lord, I am the worst person. Whom else I can compare with? क्योंकि उसने मानो परमेश्वर के सामने अपनी अवस्था ऐसे दर्शाई कि प्रभु मैं सबसे अधिक बुरा हूँ, तो मैं किसके साथ अपनी तुलना करूँ। And he was beating his chest and he said, God, be merciful to me, the sinner. और उसने अपनी छाती पीटकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। Which means he was trembling in the presence of God. इसका अर्थ है वह परमेश्वर की उपस्थिति में मानो थरथरा रहा था। In Isaiah 66, I think in verse 2 it says, God looks at those who are humble and contrite in spirit, and it says, those who tremble at the word of God. और यशायाह के 66वें अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि उन पर रहती है जो टूटे हुए और खेदित मन के हैं और जो परमेश्वर के वचन के कारण थरथराते हैं। The same way in our church, the Lord is not looking at everybody. और इसी तरह हमारे कलीसिया में भी परमेश्वर सबकी ओर नहीं निहार रहा है, but only to those who are trembling at God's word. लेकिन केवल उन्हीं को परमेश्वर निहार रहा है जो परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में थरथराते हैं। Who are taken up with their own sinfulness like the tax collector. God, be merciful to me, the sinner. जो उस जकातदार के समान अपने ही विषय में यह परमेश्वर के सामने कह रहे हैं, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। Yes, my dear brothers and sisters, even if I am despising one person in my life, that proves that I am not broken yet. और सच में भाइयों और बहनों, यदि हम में से कोई या मैं भी किसी भी एक व्यक्ति को पृथ्वी पर तुच्छ जानता हूं, तो मैं सच में टूटे हुए हृदय का व्यक्ति नहीं हूं। Yeah, may we ask the Lord in this new year, Lord, I want to learn the meaning of brokenness, crushed. और नए साल में हमारी इच्छा परमेश्वर के सामने हम इस तरह से व्यक्त करें कि सच में मैं परमेश्वर टूटे हुए हृदय का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। If you go to a shop to buy a kitchenware or some furniture, और यदि आप कोई इसी दुकानदार के पास जाते हैं कि किचन के कुछ सामान लेने के लिए या कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए, or anything you want to buy, और जो कुछ भी आप चाहते हैं खरीदना, if something is broken there,
और उसमें से यदि कोई चीज टूटी हुई हो, I mean, no customer will buy that. हाँ मैं जानता हूँ कि उसमें वो टूटी हुई चीज कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहेगा। And a cup or a saucer falls and breaks in our houses, what do we do? और कोई कप या प्लेट हमारे घर में हाथ से छूट जाकर गिर जाकर टूट जाता है तो हम उससे क्या करते हैं? We immediately clean it and put it in the dustbin. और हम उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कप और प्लेट को कचरे कुंडी में डाल देते In हैं। the world, if something is broken, it has no value at all. It is useless, fit to be thrown in the dustbin. और इस संसार में कुछ भी टूट जाए उसकी कीमत इतनी है कि उसे उठा दिया जाए और कचरे की पेटी में फेंक दिया जाए। That is exactly opposite than in the kingdom of God in the church. If someone is broken, that is the most valuable and precious person in God's eyes. और परमेश्वर के राज्य में इससे बिल्कुल विपरीत अवस्था है कि जो कोई भी टूटे हुए और खेदित मन का है वह परमेश्वर के राज्य में सबसे महान है। And the Lord is doing His best, arranging the circumstances and the life partner and the relatives and the colleagues and brothers and sisters to break our pride. और परमेश्वर बिल्कुल उत्तम रीति से हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहा है, ऐसा पति दे रहा है, ऐसी पत्नी दे रहा है, ऐसे रिश्तेदार दे रहा है, ऐसे भाई बहन दे रहा है जिससे हम टूट सकें। The choice is ours. और इसके बाद भी चुनाव हमारे हाथ में ही है। We can either allow the Lord to succeed in breaking us, or we can rebel against God and remain in our pride. और हमारे पास चुनाव है कि हम परमेश्वर का बलवा करें ऐसी परिस्थितियों में या परमेश्वर के सामने दीन बनकर अपने सुधार के लिए तैयार हो जाएं। Yeah, and the third mark that we are really broken and humble is that we will have rest in our hearts. We will not be disturbed when somebody praises us or insults us. और तीसरी चिन्ह या पहचान हम हम्बल हैं, नम्र है या नहीं, वह यह है कि हम हमारे हृदय में शांति लिए रहेंगे। यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमें तुच्छ जान रहा है या कैसा भी बुरा आचरण हमारे साथ कर रहा है। You know, Jesus said in Matthew 11:28, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." और मत्ती रचित समाचार 28 के 11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ और तुम अपने हृदय में विश्राम पाओगे। There are three words mentioned there: gentleness, humility, and rest. वहाँ पर तीन बातें लिखी है, नम्रता और दीनता और अपने हृदय में शांति। Yeah, when I'm really having the humility of the Lord, I'll be at rest in my heart. और सच में यदि हम में परमेश्वर की दीनता और नम्रता है तो हमारे हृदय में भरपूर शांति रहेगी। When somebody calls me you're the most humblest person, or somebody calls me you're the devil, it doesn't make any difference. I'll be at rest. यदि ऐसी अवस्था में कोई हमसे कहता है कि तू शैतान है, यदि या कहता है कोई व्यक्ति कहता है कि तू बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति है, ऐसी दोनों अवस्थाओं में हमारे हृदय में केवल शांति It's रहेगी। a good way to examine ourselves. If there is some unrest in our hearts, some tension, when we get upset, it proves there is no humility in our hearts. और ये अच्छी पहचान है अपने आप को कि यदि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या हमारे हृदय में अशांति हम पाते हैं तो हम समझ लें कि हम दीन व्यक्ति बने हुए नहीं हैं। You know, there's an example of one man of God in the Old Testament in 1 Samuel chapter 10. और जूने करार में 1 शमूएल के 10वें अध्याय में एक व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा हुआ है। When you're free, you please read that. और जब आप फ्री हो, समय आपके पास हो, तब आप जाकर उसे पढ़ें। When God wanted to choose a king, the first king for the nation of Israel, जब परमेश्वर ने इज़राइल पर राजा नियुक्त करने के लिए पहला राजा नियुक्त करने की इच्छा रखी, तभी he chose Saul. तब उसने चुनाव किया शाऊल का। In 1 Samuel 10, we read that, you know, when they wanted to make him a king, he went and hid himself. और हम पढ़ते हैं 1 शमूएल के 10वें अध्याय में कि जब लोग उसे राजा बनाने पड़ते शाऊल को, तब वह जाकर छुप गया। And it says, you know, there was nobody like him in the entire land of Israel. और वहाँ पर लिखा है कि उसके समान पूर्ण इज़राइल में एक भी व्यक्ति नहीं था। I mean, he was so humble. इसका मतलब है वह कितना दीन था। He didn't want to become a king, he wanted to hide himself. और वह राजा बनना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को छुपा कर रखना चाहता था। You remember there was another person in the Bible, when they wanted to make him a king, he went and hid himself in a mountain. और दूसरा व्यक्ति, क्या आप जानते हैं पवित्र शास्त्र में कौन है? जब लोग उसे राजा बनाने पड़ते तब वह उनसे दूर जाकर पहाड़ों में चला गया। That was Jesus himself. और वह प्रभु यीशु मसीह स्वयं था। I think we read in John 5 or 6 somewhere. और मैं समझता हूँ कि यूहन्ना के 5वें या 6वें अध्याय में हम इसे पढ़ते I हैं। mean, Saul was so humble like Jesus. He started his life like Jesus, humbling himself, hiding himself. He didn't want any honor in the church. और शाऊल इतना दीन और नम्र था प्रभु यीशु मसीह के समान कि वह इतना ऊंचा पद पे लेने पर भी अपने आप को उससे दूर रखकर छुपना चाहता था। But finally they made Saul a king.
और आखिरकार उन्होंने शाऊल को राजा बनाया। And there it ceased. I think towards the end of chapter 10, 1 Samuel 10, it says some of them, they despised him. They didn't even bring any gift for him. और 10वें अध्याय के आखिरी में हम पढ़ते हैं कि उसे राजा बनाने के बाद बहुत से लोगों ने उसके राजा बनने पर भी उसे तुच्छ जाना और कोई भी भेंट और उपहार उसे मिलने के पर ले नहीं आए। And the next verse it says, some of the regional languages Bible it says, he was silent like a deaf man. और आगे के वचन में यह लिखा है 11वें अध्याय के पहले वचनों में कि जब उसे यह पता चला तब वह चुप रहा जैसे एक गूंगा और बहरा व्यक्ति रहता A है। humble person will be like a deaf person when somebody praises him or insults him. और जो नम्र व्यक्ति है यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है या कोई उसकी अपमान करता है ऐसी अवस्था में वह एक बहरे व्यक्ति के समान रहेगा। Yeah, if our ears are so sharp that we listen to others when somebody praises us or condemns us, that means we are not humble. और हमारे कान तो इतने फुर्तीले हैं सुनने के लिए, यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है या हमारे कोई तुच्छ जानकर हमारी निंदा करता है तो हम तुरंत अपने कानों से उसे सुन लेते हैं। And you know about Moses, it says he was the most humblest man on the entire planet Earth. Numbers chapter 12. और हम जानते हैं कि मूसा के विषय में पवित्र शास्त्र में यह गवाही दी गई है कि पूर्ण पृथ्वी पर उसके जैसा नम्र व्यक्ति और कोई नहीं था। And you know in what context it is mentioned that Moses was the humblest man? और आप जानते हैं कि कौन सी अवस्था में मूसा के लिए यह गवाही लिखी गई है कि वो सबसे दीन और नम्र व्यक्ति था? When his own brother and sister Aaron and Miriam criticized him and his wife. और यह तब लिखा गया है जब उसके सगे भाई हारून ने और उसकी बहन मरियम ने उसकी बुराई की और उसकी पत्नी की बुराई की। Yes, brothers and sisters, when somebody criticizes us, backbites us or insults us, that's when our humility is tested. भाई और बहनों, सच में हमारी नम्रता की परख तभी होती है जब कोई हमारी पीठ पीछे निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, हमारी बदनामी करता है। And it's so beautiful. You read that in Numbers chapter 12. Nowhere do we read Moses getting angry or suddenly hitting back at his brother and sister. How dare you insult me? और गिनती के 12वें अध्याय में हम साफ पढ़ते हैं इसे कि मूसा को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया उन लोगों ने जिन्होंने उसकी निंदा और बदनामी की, बुरा कहा कि आप हमारे विषय में ऐसा क्यों कह रहे हो। But it says, I think in Numbers 12, 3 or 4, it says, suddenly the Lord spoke. और गणना 12 में तुरंत तीसरे चौथे अध्याय में शायद ये लिखा है कि परमेश्वर ने तुरंत, चौथा वचन ये लिखा है कि तुरंत परमेश्वर ने बात की। That's the mark of a humble person, that he will not suddenly hit back, but the Lord will suddenly hit back. I mean, it's the Lord who defends a humble person. और जो नम्र व्यक्ति है वो स्वयं अपना पलटा नहीं लेगा, परमेश्वर उसका पलटा लेने के लिए उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। Yeah, just like Saul, many of us, we start very humble, we want to hide ourselves. और शाऊल के समान यदि कोई व्यक्ति है कि जो अपने आप को ऊंचा बनना के समय अपने आप को छुपाता है। At the beginning of our Christian life. और when we begin our Christian life. जब हमारा मसीह जीवन का आरंभ रहता है। Or when we come new to the church. और यदि हम कलीसिया में आते हैं जब। I remember the first time I came to Bangalore CFC, I was sitting in the last. Nobody knew who I was. I was unknown. और जब मैं पहली बार बेंगलोर की कलीसिया में गया तो आखिरी के कुर्सियों पर जाकर बैठा क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था, मैं किसे जानता नहीं था। It's good to ask ourselves when the day we were born again, the day we came to the church, how we were unknown. Nobody knew who we were. और हम अपने आप से प्रश्न करके अपने आप को जांचे यह कि जब हम कलीसिया में नए बनकर आते हैं, जब हमें कोई जानता नहीं, हम किसे जानते नहीं, तब हमारी अवस्था कैसी रहती है। And may we continue in that, my brothers and sisters. और मेरा निवेदन है कि हम उसी तरह जैसे हम पहले थे हम हमेशा वैसे ही बने रहें। Lord, you must be exalted and I must go down. परमेश्वर तू ही महिमा पाए और मैं तुच्छ गिना जाऊं। And I don't want any honor in the church. और मैं कलीसिया में कोई भी सम्मान की आशा नहीं रखता I हूं। don't want any lust in my flesh to be fulfilled for honor. और मेरे शरीर में मैं कौन सी भी ऐसी अभिलाषा की इच्छा नहीं रखता हूं कि मैं किसी से सम्मानित हो जाऊं, ऐसी अभिलाषा। That's how Saul began his life. और इसी तरह से शाऊल ने अपने जीवन का आरंभ But किया। you know how later in, I think, chapter 18 or somewhere, when somebody appreciated David more than Saul, it says he became very angry. और शायद 18वें अध्याय में यह लिखा है कि जब शाऊल को यह पता चला कि कोई दाऊद की शाऊल से ज्यादा प्रशंसा कर रहा था तो शाऊल दाऊद के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो उठा। Once upon a time he was so small in his own eyes, but now he has become big. और कुछ समय पहले वह अपने ही नजर में इतना तुच्छ व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी नजर में अब अपने आप को कुछ समझने लगा। And the sad thing was Saul never repented of his sin and he ended committing suicide.
और दुख की बात यह है कि शाऊल ने इसके प्रति कभी भी पश्चाताप नहीं किया और उसने अपने जीवन का अंत सुसाइड अर्थात आत्महत्या करके अंत किया। Isn't that a sad thing that Saul, he began his life like Jesus with absolute humility. और ये कितना दुखद बात है कि शाऊल जैसे व्यक्ति ने पूर्ण नम्रता से अपने जीवन का प्रभु यीशु के समान नम्रता से अपने जीवन का आरंभ किया, But he ended his life like Judas Iscariot. लेकिन उसने अपने जीवन का अंत जुदास इस्करियोत के जैसा किया। He started his life absolutely humble. When somebody praised him or condemned him, he had a deaf ear. It did not have any effect on him. उसने ऐसी दीनता और नम्रता अपने आप में रखी पहले दिनों में, जब किसी ने उसके विषय में बदनामी की या निंदा की तब वह बहरे के समान इसे नजरअंदाज करता रहा। But as the years passed by, when somebody appreciated a young person, he was so upset. और लेकिन कुछ समय के उपरांत बाद में ही जब किसी जवान व्यक्ति की प्रशंसा उससे बढ़कर की गई तो वह उसके ऊपर क्रोधित हो उठा। Just like the Lord healed physical deaf ears, और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक रूप के बहरे के कान को खोल दिए। yeah, I want to ask the Lord, and may we all ask the Lord in this new year onwards, Lord, may you make my spiritual ears deaf when others insult me or backbite me or praise me. I want my ears to be sensitive only to listen to your voice. और क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं इस नए वर्ष में कि परमेश्वर यदि कोई मेरी निंदा करता है, बदनामी करता है या तुच्छ जानता है, उस समय मेरे कान मानो बहरे हो जाएं। And finally, the last mark. और आखिरी का एक चिन्ह जो हम जानते हैं, पढ़ते हैं, Mark of a true humble person is that he will go higher and higher and higher as the years pass by. और वह ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाएगा जैसे जैसे समय उसके जीवन में आगे आगे बढ़ता जाएगा, वह दीन व्यक्ति आगे आगे बढ़ता You know, जाएगा। in the year 2015, और पिछले साल 2015 में some of us have come to a glorious, victorious life and happy married life. और हम में से कुछों ने बहुत ही महिमा युक्त जीवन पिछले साल बिताया है, अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छी तरह से बिताया है। Some of us have not made any progress at all. और हो सकता है हम में से किसी ने बिल्कुल ही कुछ उन्नति नहीं की हो। And some are weeping because they have not made progress, and some they just not bothered at all. और कुछ क्योंकि उन्होंने उन्नति नहीं की इसलिए रोते होंगे, और कुछ है जो उन्नति न पाने पर भी इसको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। And there are some others it has gone bad and worse. और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो उससे भी अधिक पिछले साल बहुत बुरे हो गए रहेंगे। No matter what our condition is, my brothers and sisters, the Lord looks at us with love and hope and encouragement. भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम कैसे भी तीनों चारों अवस्थाओं में कैसे भी अवस्था में क्यों न पाए जाते हों, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। In Luke chapter 14, लूका के 14वें अध्याय में maybe we'll look at that. There we read one of the reasons why we have not grown, why we have not come higher in this और past year. उसमें हम जान सकते हैं लूका रचित समाचार के 14वें अध्याय में क्यों हमने उन्नति नहीं पाई, हम क्यों बड़े नहीं हुए हैं। Luke chapter 14, लूका इसका 14वां अध्याय, Luke chapter 14 verse 7, he noticed there were some people who were picking up places of honor. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहों को चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। And then verse 8, it says, when you are invited by someone to a wedding feast, और यह लिखा है कि जब आपको विवाह में कोई व्यक्ति आमंत्रित करता है तभी it says, don't take the place of honor. तब प्रभु यीशु ने कहा जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। Do you know why the Lord said that? आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? It says, because someone more distinguished than you may have been invited by him. यह इसलिए कहा है क्योंकि आगे लिखा है कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। Yeah, do we consider ourselves like that? When we come to the church, the other brothers are more distinguished, more honorable than me. क्या हम जब कलीसिया आते हैं क्या हम अपनी अवस्था ऐसी समझते हैं कि हमसे और भाई और बहन ज्यादा परमेश्वर की नजर में मुख्य हैं? Or do I think I am the most important person here and the church doesn't run without me? और शायद हम ऐसा समझते हैं कि मैं ही मुख्य व्यक्ति हूँ। Yeah, such people are a pain in the Lord's neck. और ऐसे यदि हम व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के देह में मानो एक कील के समान उसे दुखाने वाले हैं। And those who say, Lord, the other brothers and sisters, they are more important than me. और यदि हम में से कोई ऐसे हैं जो कहते हैं अपने मन में ऐसे जताते हैं कि परमेश्वर बाकी भाई और बहन मुझसे ज्यादा मुख्य और महत्व के हैं। And then verse 10, the Lord said, और 10वें वचन में परमेश्वर ने फिर कहा है when you are invited, जब आपको निवेदन दिया जाता है go and take the last place.
पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, Yeah, so that the Lord will come and say, move up higher. कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। Oh, why have we not moved up higher in the last year हम पिछले साल ऊंचे क्यों नहीं उठे हैं in our spiritual life? हमारे आत्मिक जीवन में? Because we have not taken the last place. क्योंकि हमने आखिरी का जगह अपने लिए नहीं चुना We है। have not taken the lowest and the last place. That is the reason we have not grown spiritually. यह हम आत्मिक उन्नति न पाए हैं, इसका यह भी एक कारण है कि हम सबसे नीचा और तुच्छ अवस्था में अपने आप को नहीं रखा है, We wanted the place of honor. और हमने सम्मानित जगह और सम्मानित स्थिति अपनाना चाहा है। It is there in all of us flesh, my dear brothers and sisters. और भाइयों और बहनों, यह हमारे शरीर में एक स्वभाव के समान मानो है। And you know that verse John 3:30, the Lord must increase and I must decrease. और यूहन्ना 3:33 में जो लिखा है, परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। And I was reading one of the paraphrases there. It says, may the Lord take the center stage and I want to drop off and fade away into the sidelines. और मानो जो दूसरा भाषांतर में भाई कहता है, मैंने पढ़ा हुआ ऐसा था कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में मुख्य रहे और मैं मानो तुच्छ और कोने में पड़ा हुआ व्यक्ति रहूं। And those are the most precious brothers and sisters और ऐसे ही भाई और बहन परमेश्वर की नजर में बहुत ही महत्व के और मौल्यवान है, who want to exalt the Lord जो परमेश्वर को महिमा देना चाहते and हैं make themselves hidden, और अपने आप को छुपा देना who चाहते हैं, take the last place. और जो आखिरी का स्थान लेने के लिए इच्छुक हैं। On the last day of the Lord, what was the Lord doing? और आखिरी दिन पे परमेश्वर क्या कर रहा था? He was taking the last place, washing the disciples' feet. और वह उस आखिरी दिन में भोजन के समय में अपने चेलों के पैर धो रहा था। If at all we compete, my dear brothers and sisters, अगर- may we compete for the lowest place in the church. और अगर हम स्पर्धा के समान तुलना करते हैं तो भाइयों और बहनों, मैं आग्रह करूंगा कि आखिरी जगह के लिए हम एक दूसरे में तुलना करें। Like someone said, और किसी ने कहा है जो, there are two queues, two lines in every church. और हर कलीसिया में दो लाइंस रहते हैं। On the breaking of bread, when the Lord was breaking bread with his disciples, और आखिरी दिन पे जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज ले रहा था, the first queue was full. All 12 disciples were lining up there. और पहली लाइन में सब 12 शिष्य खड़े हुए थे। What was that queue for? और वो पहली लाइन किसके लिए थी? Who will be the next leader? और वह लाइन इसलिए थी कि आगे जो अगुआ वो कौन बनेगा। It says they were quarreling who will be the next leader. और वह लिखा है कि वे झगड़ रहे थे कि अभी अगुआ कौन And there बनेगा। was a heavy rush there. The line was full. और वह लाइन इतनी फुल थी, वहां पूर्ण गर्दी थी। And there was a second line, the second queue. और जो दूसरी लाइन थी, And there only Jesus was there. और उस लाइन में केवल प्रभु यीशु मसीह खड़ा था। There the competition was who will wash the disciples' feet. और वह कंपटीशन यह थी कि अब चेलों के पैर कौन धोएगा। And that line was empty. Only Jesus was there. और उस लाइन में कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह खड़ा Yeah, था। may we not have that in our church, my dear brothers and और sisters. भाई और बहनों, हमारी कलीसिया में ऐसी अवस्था हमारी न होने May पाए, we all be part of that second queue. और हम सब उस दूसरी लाइन के भागीदार बने Compete for the lowest place. और सबसे निचली और तुच्छ जगह में अपने आप को देखें। And that's the Lord's character, that he hides himself. There's one verse in book of Isaiah, it says he is a God who hides himself. और यशायाह के पुस्तक में एक जगह पर यह लिखा है कि वह परमेश्वर है, इतना नम्र दीन, जो अपने आप को छुपाता है। Even in the wedding of Cana, और काना के विवाह में भी, after he did the miracle there, he didn't hang around there, he left off immediately. और उसने वहां इतना अद्भुत चमत्कार करने पर भी वह ऊंचा और सम्मानित होने के लिए खड़ा नहीं रह गया, लेकिन वहां से तुरंत चला गया। Yeah, if we ask the Lord, what is the thing that you require of me in this new year? और हम अगर परमेश्वर से पूछे कि हे परमेश्वर, इस नए साल में तू मुझसे क्या चाहता है, The Lord says, just walk humbly with me. और तब परमेश्वर हम में से हर एक से कहेगा, मेरे साथ दीन और नम्र होकर That's what चल। Micah 6:8 said. What does the Lord require of you? He has told you that is to do justice, love mercy and to walk humbly with your God. और मीका के 8वें अध्याय में यही प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि 3 वस्तुओं की मैं तुमसे आशा रखता हूं कि न्याय से प्रीति करो, दया से प्रीति करो, न्याय से काम करो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। And in Zephaniah chapter 3 verse 11 and 12 it says, God removes those who are proud and arrogant and he leaves those who are humble people in the church. और सपन्या 3:18 में ये परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है जो दीन और खेदित मन के हैं, लेकिन परमेश्वर उनका सामना करता है जो घमंडी हैं। Yeah, may we all seek for that humility. और हम में से हर एक उस नम्रता की चाहत रखें। That's what Zephaniah chapter 2 says. All those who are humble of the earth seek humility.
और यही सपन्या के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो अपने परमेश्वर जो है वो दीन बने और दीनता की खोज करें। And we don't learn humility just by reading the Bible. और हम नम्रता इस तरह से नहीं पा सकते केवल पवित्र शास्त्र पढ़ने से। We learn it from Jesus. That's what the Lord said, learn from me. और हम इसे प्रभु यीशु मसीह को देखकर पा सकते हैं नम्रता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। And if we have the genuine humility and brokenness, we'll be the first person to set things right with others, to reconcile, to ask forgiveness. और यदि हम सच में दीन और नम्र व्यक्ति हैं तो हम पहले व्यक्ति रहेंगे कि हमारे हृदय में सबसे अधिक शांति रहेगी और सबसे मेल करने में हमें कोई भी बाधा रुकावट नहीं होगी। And those are the most precious people in God's eyes, not the ones who are gifted or talented and successful people, but those who are really broken. और हमें क्षमा करने और क्षमा मांगने में भी अड़चन नहीं होगी। यही लोग हैं जो हृदय के टूटे हुए परमेश्वर की नज़र में सम्मानित और आदरणीय, न कि वे लोग जो परमेश्वर के दानों में बहुत ही आशीषित हुए हैं। And most of us, my dear brothers and sisters, I mean not most of us, all of us, we are very good. और भाइयों और बहनों, हम में से सब नहीं, बहुत नहीं, लेकिन हम में से हर एक बहुत ही अच्छे हैं। Very good qualities. हम में से हर एक में बहुत अच्छे गुण भी हैं। But there is brokenness in missing. लेकिन हम में से हर एक में टूटा हुआ हृदय, भग्न हृदय, जिसको परमेश्वर कहता है बलिदान है उसके सामने, वो हम में कमी है। Do you remember Job? हम सब ईयोब को जानते हैं या अय्यूब को जानते हैं। He was a grandfather. वह एक दादाजी था। But still he had overcome the lust of the eyes even in his old age. लेकिन उसके वृद्ध अवस्था के दिनों में भी उसने He used to आंखों की इच्छा पर अब जय पाई उसने। And he used to pray regularly for his children. और वह अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करता था। He used to help the blind people cross the road. और जब उसने देखा कि उसने मदद की जो अंधे लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे उनकी। Excellent qualities. और बहुत ही अच्छे से अच्छे गुण उसमें थे। One thing missing in his life was that he was not broken. लेकिन एक बात की कमी उसके जीवन में थी कि वह टूटे हुए हृदय का नहीं था। That's why towards the end of the book of Job, you know what Job said? इसलिए अय्यूब के पुस्तक के आखिरी अध्याय में अय्यूब ने यह कहा, Lord, I've heard about you. परमेश्वर, मैंने तेरे विषय में सुना है। Just like we hear about the Lord and listening to a message, listening to a CD. जैसे हम भी परमेश्वर के विषय में सुनते हैं, जब हम वचन सुनते हैं और उपदेश सुनते हैं या कोई कैसेट मैसेज का सुनते हैं। But now, Lord, my eyes have seen you. लेकिन अय्यूब कहता है कि अब मेरी आंखों ने परमेश्वर तुझे देखा है। You know what he says? I put my hand on my mouth. I don't want to speak much. और तब हम जानते हैं कि अय्यूब ने क्या कहा कि मैं अपनी जीभ अपने दांतों के बीच रखना चाहता हूं, मैं बात करना नहीं चाहता हूं। And he says, I repent in dust and ashes. और उसने कहा कि मैं अपना मुंह राख में डालकर पश्चाताप करना चाहता हूं। And that is what the Lord was trying to do in Job's life. He had very, very good qualities, but he was not broken. यही अच्छे से अच्छे गुण रहने पर भी परमेश्वर देख रहा था और चाह रहा था, जो उसके अंदर एक बात की कमी थी अय्यूब में, कि वह टूटे हुए हृदय का नहीं था। That our faces will be always in the dust. कि हमारे मुख हमेशा हमारी जमीन पर, भूमि पर मानो राख में रहेंगे। And not to be overexcited just because we have got victory over anger or lust or having a happy married life. और हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा है, या अपने आंखों की वासना पर हमने जय पा ली है, या हमने क्रोध पर जय पा ली है, इससे हम संतुष्ट होकर बहुत ही अपने आप को ऊंचा न करें। And we can have all those things and not be broken. और वे सब चीजें शायद हम पा भी लें, लेकिन हमारे अंदर टूटे हुए हृदय की कमी रहे। May the Lord raise up many brothers, not just many, all the brothers and sisters sitting here. The Lord's will is that we should all be broken before Him. परमेश्वर ऐसा करे कि हम में से यहाँ उपस्थित हर एक भाई और बहन, परमेश्वर हम में से हर एक को टूटे हुए और दुखित हृदय का ऐसा बनाए। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। I want to thank the Lord for the rich word God has given to us. परमेश्वर को ऐसे महान और उत्तम वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Dear brothers, God is speaking to us so that we may repent. भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इसलिए बातें कर रहा है कि हम पश्चाताप करें। Yeah, the Lord was speaking to me that, do you really want to be the last person who wants to sit at the last bench? और परमेश्वर मुझसे बातें करके मुझसे कह रहा था, क्या तू आखिरी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बनना चाहता है? Or do you want to show off in the front? या तू अपने आप को सबसे आगे रखने का पसंद करता है? I want to repent. मैं पश्चाताप करना चाहता I हूँ want to be the last person. और मैं चाहता हूँ कि सबसे तुच्छ और आखिरी व्यक्ति मैं गिना जाऊं।
so that the Lord may come, as we heard, he says, please come up higher. कि मानो ऐसा जो हमने पढ़ा कि स्वयं परमेश्वर आकर हमसे कहे कि आगे बैठ जा और ऊंचा उठ जा। Yes, that's the work of the Lord and the work of the Holy Spirit. और यही परमेश्वर का काम है, ये पवित्र आत्मा काम है कि हमें उसके द्वारा हमें सम्मान मिले May we repent, और हम पश्चाताप कर सकें, so that Lord may bring us to the place where he wants us to be. कि परमेश्वर हमें उस स्थान में ले जा सके जहां वह हमें ले जाना चाहता है। I want to turn to 1 Samuel, हम 1 शमूएल की पुस्तक में जाएंगे, 2 Samuel. 2 शमूएल की पुस्तक में। There is an instance where वहाँ एक वाक्य लिखा है जहाँ chapter 16, 2 16 Samuel chapter 16. 2 शमूएल इसका 16वां अध्याय। This is David when his son Absalom had done a conspiracy against him. और दाऊद का बेटा अबशालोम जब उसने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा And he overtook his kingdom, the father's kingdom. और अपने पिता के राज्य को जब उसने हड़प लिया, And then he had to run for his life, David and his servants. और इस अवस्था के कारण उसका बेटा राजा बनने के कारण दाऊद को और उसके सेवकों को प्रजा से भाग जाना पड़ा। And he left his kingdom and he is running for his life. और वह अपना राज्य को छोड़कर अपना जीवन बचाने के लिए जब भाग रहा है। And I want to read from 2 Samuel chapter 16, verse 5 onwards. और 2 शमूएल 16वां अध्याय 5 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। When King David came to Behorim, behold, there came out from there a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. He came out cursing continually as he came. जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। Yeah, we can read 6 also. It says, he threw stones at David. और वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। And all the people of all the mighty men who were at his right hand and at his left. और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। Yeah, so first verse 5 we read about he was being cursed. Verse 6 we read about being thrown with stones. और 5वें वचन में पढ़ते हैं कि उसे शाप दिया गया दाऊद को और उस पर पथराव किया गया। And 7 we read what did he curse. Just read the words which he is using, Shimei is using. Thus Shimei said when he cursed, get out, you man of bloodshed, you worthless fellow. और 7वें वचन पढ़ते कि किन वचनों से बातों से उसे शाप दिया गया। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। Look at the words which is falling upon David. और दाऊद के कौन से बातें सुननी पड़ रही है, इस पर ध्यान कीजिए। We all, dear brothers, would have gone through many such situations. भाई और बहनों, हम में से कोई जो ऐसी अवस्थाओं में हो सकता है गुजरे हों। And it continues in verse 8 again. He is again speaking. और 8वें वचन में आगे पढ़ते Shimei हैं। is again cursing David, saying, "The Lord," verse 8, "the Lord has returned upon you all the bloodshed of the house of Saul, in whose place you have reigned." और आगे हम पढ़ते हैं 8वें वचन में, यहोवा ने तुझ से शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। And the Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है। And behold, you are taken in your own evil. और इसलिए कि तू खूनी है, For you are a man of bloodshed. तू अपनी बुराई में आप फंस गया। It was something like trying to blame David, saying that you did bad to Saul. He was a relative of Saul. You did bad to Saul.
Now the same thing is happening to you. Look what is happening. Now you have to run for your life. और जो शिमी था वह दाऊद का रिश्तेदार था और शाऊल का रिश्तेदार था। इसके लिए वह दाऊद से ऐसे शब्द कह रहा था कि जो तूने शाऊल के साथ बुराई की है वही बुराई अब तुझ पर लौट आई है। तेरा बेटा राजा बन बैठा है और तुझे भागना पड़ रहा है। But we know what is written here. What he said was not true. David never wanted the seat of Saul. The Lord gave him that place to be the king. लेकिन हम जानते हैं कि दाऊद राजा बनना शाऊल की जगह पर नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं शाऊल की जगह पर दाऊद को राजा बनाया। Then there were some faithful servants of David. Verse 9 we read about Abishai, the son of Zeruiah, said to the king, "Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut off his head." और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। Dear brothers and sisters, that's how we also react. और भाइयों और बहनों, इसी तरह हमारा भी प्रत्युत्तर ऐसी अवस्थाओं में रहता है। Yes, when somebody says a bad word to us, something bigger comes, dead dog. और यदि कोई हमें अपमानजनक या बदनाम करता है, अपमानजनक शब्द हमारे लिए बोलता है, तो उससे भी भयंकर बातें हमारे मुंह में मानो आती है कि वह मरा हुआ कुत्ता के समान। And let me finish him off. और ऐसी बातें मन में आती है मानो जाकर हम उसे अभी इसी समय मार डालें। But look at the response of King David, my dear brothers and sisters. लेकिन हम देखेंगे कि राजा दाऊद का प्रत्युत्तर क्या था। But the king, that is David, says verse 10, "What have I to do with you, O son of Zeruiah?" That is, he is talking to his own colleague, his own servant Abishai. What have I to do with you? और वहाँ दाऊद राजा अभिषेक से, जो उसका सेवक था, जिसने आज्ञा मांगी पिता पर दाऊद से कि वह उसे मारने की आज्ञा दे, तब राजा ने उससे कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? As if he was not becoming one with his own servant, saying that I join with you. He said, "No, I don't have part in that." Something like that he is speaking there. और वह अपने सेवक के साथ, उसके साथ सहमत होकर, उसकी बातों में उसको सहमत होकर शामिल नहीं हो रहा है। उससे कह रहा है, मुझे तुझसे क्या काम? And then he says, if Shimei curses, and if the Lord has told him, "Curse David," then who shall say, "Why have you done so?" और आगे उसने कहा, वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उसे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? Dear brothers and sisters, that is the secret of humility, when we realize Lord is behind everything that is happening in my life. If I really realize, then I will be really humble. I will not retract back. और भाइयों और बहनों, ऐसी सब अवस्थाओं के हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है। यदि हम इसे समझते हैं तो हम दीन बनेंगे, उसका विरोध कभी नहीं करेंगे। And he continues in verse 11, "Then David said to Abishai and to all his servants, Behold, my son who came out from me seeks my life. How much more now this Benjamite," that is Shimei, Saul's relative, "let him alone, let him curse, और for the Lord has told him." फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। Yeah, dear brothers, really, if we can learn the secret, when we come to that place where we say, "Let him alone, let him curse." और यदि हम परमेश्वर भाइयों और बहनों भेद को जानना चाहते हैं, तो मानो यह कहेंगे कि उसे मुझे शाप देने दे। Because the Lord has told him. The Lord is in everything which is happening in my life. क्योंकि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, उसकी अनुमति परमेश्वर ने दी है। Dear brothers, God wants all of us to look in that way, that the Lord is arranging these situations in this fashion
so that I may humble myself. भाइयों और बहनों, हम इस तरह से अपने जीवन को देखना सीखें कि परमेश्वर सब परिस्थितियों की बहुत उत्तम रीति से हमारे जीवन में प्रबंध कर रहा है कि हम दीन और नम्र बन सकें। And when in that condition, when we have such a heart, then verse 12 comes really inspiring us. और यदि हमारा ऐसी अवस्था, हमारा हृदय दीन और नम्र है, तब हम इसे सीख सकेंगे। Verse 12, perhaps 12वें वचन में, perhaps the Lord will look on my affliction and return good to me instead of his cursing this day. कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। Yes, there is a perhaps there. Yes, may the Lord do that. Even if it doesn't happen, that is fine. और जो लिखा है कि शायद ऐसा हो, जबकि हो सकता है ऐसा हो भी या नहीं भी हो तो भी अच्छा है। That is complete trust in the Lord. Lord, you are doing good to me, Lord. और यह दिखाना, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा दिखाना है, ऐसा कहना कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है। And this is the attitude of a broken and a humble person. और एक टूटे हुए हृदय के व्यक्ति का यह एक चिन्ह है। And we need not be like David's servant Abishai in verse 9 saying that, dead dog, I will cut off your head. और हम ऐसे न बने दाऊद के जो सेवक था अभिषेक के जैसा कि मैं जाकर उसका सर काट दूंगा। Yeah, may, dear brothers, both these characteristics or the choice is with us. और ये दोनों किरदार जिसके विषय में हमने सुना है, हम कौन से किरदार को अपनाएं, इसका चुनाव हमारे पास है। We can be like Abishai or we can be like David. हम अभिषेक के समान बन सकते हैं या हम दाऊद के जैसा भी बन सकते हैं। May we really choose the path of David. और हम में से हर एक जन विशेषकर दाऊद के समान उसका अपना भाग चुने। I want to take you to another portion of David's life when he was being spoken by prophet Nathan, when he was pointing out his sin to him. और नातान नबी ने जब दाऊद की बुराई, उसका पाप उसे जताया, उसके विषय में हम सीखेंगे। Chapter 12 we read about that. Nathan comes and narrates a story to him. 2 Samuel, sorry, same book, chapter 12, 2 Samuel chapter 12. Here also we read about Nathan coming and telling a story that there was a man who was a rich man and he had some traveler coming to him, and then he goes to his neighbor, a poor neighbor, and gets the best lamb which was like a small baby to him. He takes and he cuts and gives it to his traveler to serve him food. पहला 12वां अध्याय 2 शमूएल उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। आगे पढ़ेंगे। David could not understand who he was talking of, even though the prophet Nathan was actually telling to him. और दाऊद इसे समझ नहीं पाया कि नातान किसके विषय में कर रहा है, जबकि नातान स्वयं दाऊद से बात करते समय उसी के विषय में ये बता रहा था। And finally Nathan had to tell David in verse 7, और 7वें वचन में नातान को दाऊद से यह कहना पड़ा, you are the man. तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। And we know after hearing that how David's whole attitude changed. और हम सब जानते हैं कि यह सुनने के बाद दाऊद का पूर्ण रवैया, उसका नजरिया बदल गया। And we read in verse 13 of the same chapter, और इसी अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, he is accepting you are the man. As an answer to that he is saying, I am the man. तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। I have sinned against the Lord. I was thinking it is something like, yes, I am that man. और दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार करके कहा, हाँ, यह पापी व्यक्ति मैं हूँ।
I was thinking when somebody tells us, you are the man. और मैं सोचता हूँ जब कोई हमसे कहता है कि ऐसा व्यक्ति तू है, Many a times our answer quickly comes, no, something else was there, no, this person was there, that person was there. We always try to make excuses. और मानो प्रत्युत्तर में हम तुरंत कहते हैं नहीं ये भाई था, वो भाई था, ये बहन थी, मानो हम अपनी तुरंत सफाई देना चाहते हैं. But it is so wonderful when you say, I am the man, I have sinned against the Lord. और ये कितना अद्भुत है यदि उस समय हम उत्तर में यह कहें कि हाँ वह पापी व्यक्ति, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया व्यक्ति मैं हूँ. And this is not what I want to focus on. I want to go further. After the Lord took his child away, which was born through Bathsheba, और बर्शिबा के द्वारा जो उसे पुत्र मिला था दाऊद को, जब परमेश्वर ने उस पुत्र के विषय में जब दाऊद से बातें की, तब हम वहां पर केंद्रित होना चाहते हैं. We know that he for 7 days he was just lying. We read that in verse 16. David fasted. David therefore, we can read from verse 15 onwards, the second half. Then the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, so that he was very sick. जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया. And immediately when he saw that he is sick, what was David's response? David did not become angry, or he said, Lord, I have already repented. With all this, he did not go against God. We read in verse 16, he therefore inquired of God. तब दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा. And he did not eat food. Verse 17, last part, we read for 7 days. कि 7 दिन उसने भोजन नहीं किया, हम पढ़ते वचन में. And verse 18, then it happened on the 7th day that the child died. और 8वें वचन में, हम 18वें वचन में पढ़ते हैं कि 7वें दिन बच्चा मर गया. And after that, David rose from there. He ate food. और उसके बाद दाऊद वहां से उठा और उसने जाकर भोजन किया. And his servants were all confused. What is this? When the child was alive, he was fasting, and now the child is dead. He is awake and he is. और उसके कर्मचारी बहुत दुविधा में पड़ गए और कहने लगे कि जब उसका बच्चा बीमार था तो उसका पिता दाऊद उपवास करने लगा, जब बच्चा मर गया तो वह उठकर खाना खाने बैठा. We read that in verse 21. Then his servants said to him, what is this thing that you have done? While the child was alive, you fasted and wept, but when the child died, you arose and ate food. तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा. And read verse 22. While the child was, David said to his servants, while the child was still there, I fasted and wept, for I said, who knows? Who knows? The same word we read there, perhaps. Who knows? Perhaps the Lord may be gracious to me, that the child may live. उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे. Yes, there again the choice is left to Lord, whether you give or not, whether Shimei curses or not, whether this turns into a blessing or not. और यह चुनाव परमेश्वर पर ही हमेशा निर्भर रहे कि शिमई यदि हमें शाप देता है या उसके बदले में हम अच्छा आशीष पाते हैं या नहीं, या यदि बच्चा मर जाता है वह जीवित हुआ या नहीं, यह सब चुनाव परमेश्वर तक ही रहे. Yes, dear brothers, every true, broken and a humble person will leave the choice with the Lord. और सच में टूटा हुआ हृदय का व्यक्ति और नम्र व्यक्ति वह है जो पूर्ण चुनाव परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है. And what really encouraged me was verse 24. और 24वां वचन जिससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला वो यह है, Then David comforted his wife Bathsheba. तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया. Dear brothers and sisters, when there is a problem in the home, do we really blame our wives or do we comfort her?
और यदि हमारे घर में कोई बिगड़ी हुई अवस्था बन जाती है भाइयों और बहनों, तब क्या हम उस अवस्था का दोष अपनी पत्नी पर लगाते हैं या उसके पास उसे सांत्वना देने जाते हैं? Dear brothers, many a times, including me, I have done this of blaming our wives for the situation that is happening in the home. और जो बुरी अवस्था घर में हुई है भाइयों और बहनों, मैं सच कहता हूँ, मैं भी ऐसा कई बार कर चुका हूँ कि अपनी पत्नी को उसका जिम्मेदार ठहराया है. But no wonder David was called man after God's own heart. लेकिन दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य है, ऐसा कहा गया था. He, after going through all the pain of losing his son in the sight of men, he became adulterer, publicly known to everyone, that Nathan came and told about David that he killed a man to get his wife. और दाऊद को यह सब कुछ सुनना पड़ा कि जब उसका पुत्र मर गया और उसे यह नातान के द्वारा सुनना पड़ा कि तू एक व्यभिचारी व्यक्ति है और जिस स्त्री को तू विवाह करना चाहता है उसके पति को तूने मरवा दिया, तू एक हत्यारा है. यह सब सुनने पर भी, And after all those, he does not blame his wife. और इन सब के बावजूद भी उसने किसी भी बात का दोष अपनी पत्नी को नहीं लगाया. But it is said, it's so encouraging, David comforted his wife. लेकिन कितना प्रोत्साहन देने वाला ये वाक्य, ये वचन लिखा हुआ है भाइयों और बहनों के, दाऊद ने अपनी पत्नी को जाकर, बत्शेबा को जाकर सांत्वना दी. May we really learn from the man who was called a man after God's own heart. क्या हम इस व्यक्ति के द्वारा सीख सकते हैं जिसके विषय में यह लिखा है कि यह व्यक्ति दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था. That we may learn when there is a problem to take the blame on myself. कि जब कोई भी बिगड़ी हुई परिस्थिति हो तब उसका दोष हम अपने ऊपर ले लें And not put on our life partners. और हमारे जीवन साथी के ऊपर इसका दोष न लगाएं. May we learn from these and really become true, broken and humble people. और हम सब इसमें से भाइयों और बहनों सीखें और सच्चे टूटे हुए हृदय के व्यक्ति बन जाएं. Then the Lord will lead us saying, come up higher, come up to the front. तब परमेश्वर हमें सम्मान देगा और कहेगा ऊपर उठ और ऊंचा हो जा. And every true, broken and humble person, God will give a word in his heart to bless others. और जो कोई टूटे हुए हृदय का व्यक्ति है, परमेश्वर उसके मुख में अपना वचन जरूर देगा जिससे दूसरे लोगों को शांति, सांत्वना और प्रोत्साहन मिले. I want to live in fear so that the Lord may have mercy on me. और मैं इस तरह से परमेश्वर के डर में जीना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ पर निरंतर दया करता रहे. Amen. धन्यवाद. A few years before, when we were going through a very tough time, कुछ साल पहले जब हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे, with regards to extended family, with regards to health, और हमारे सेहत के विषय में और बड़ी परिवार के विषय में, we were completely depressed, down and helpless. और हम पूर्ण रीति से निराश हो गए थे और मानो असहाय हो गए थे. I was very hesitant to take help from people. That has always been my character. और यह मेरा हमेशा स्वभाव रहा है कि मैं लोगों से मदद मांगने को हमेशा हिचकिचाता हूँ. Yes, but this time I was in such bad shape. I went over to brothers and sisters within the church, outside the church, everywhere asking for suggestions. और इस बार अवस्था ऐसी थी कि मैं कलीसिया के अंदर भाइयों बहनों के पास या बाहर के लोगों के पास सलाह लेने के लिए गया. And I could never get clear answers or directions, and everywhere one thing that was common was every brother and sister said, brother, you need to seek the Lord. और जहाँ कहीं मैं गया अंदर या बाहर, मुझे योग्य सम्मति या मार्गदर्शन चाहे नहीं मिला, लेकिन सब जगह से मुझे यह सुनना मिला कि आपका सहारा परमेश्वर के पास ही जाइए आप. That in some way it made me angry and even more depressed that I was not getting help from
people whom I could talk and listen to. और ऐसी अवस्था में मेरा थोड़ा क्रोध भी बढ़ गया और निराशा भी मानो बढ़ गई कि जो मदद मुझे चाहिए थी मानो वह नहीं मिल रही थी लोगों के द्वारा. Yeah, but those were the greatest and the best days of my life because nobody came and gave me a direct answer. लेकिन वही मेरे जीवन के सबसे अनमोल समय था कि कोई तुरंत आकर मुझे मार्गदर्शन नहीं किया, मुझे सलाह नहीं दिया. The only place I could go and cry out and the only shoulder I really had was the direction that was given to me. लेकिन जो ही भाग मेरे पास करना रह गया था वह यही था कि मैं जाकर परमेश्वर के कंधे पर जाकर रोऊं और अपना दुखड़ा उसके सामने रखूं. Yeah, even after going to the Lord, He didn't remove all the problems. लेकिन परमेश्वर के पास जाने पर भी उसने मेरे सब समस्याओं का समाधान या हल नहीं कर दिया. Yeah, but He opened one door at a time. लेकिन एक एक समय पर परमेश्वर ने एक एक द्वार खोलना आरंभ किया. Today also all the doors are not open. आज भी सब दरवाजे खुले हुए नहीं हैं. And I thank God for it that He's only opening one door at a time. और मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक समय पर एक ही दरवाजा खोल रहा है. And now 4 or 5 years after marriage, when I look back, I just thank the Lord that those days happened so that I could know that I did not have the wisdom and the capability. और 4-5 विवाह के 4-5 सालों के बाद जब मैं पीछे वर्षों को देखता हूं तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं यह जान पाया कि परमेश्वर मुझ में कोई योग्यता या लायकी नहीं है. That to take any decision and that I had to rely on the Lord. कि कोई भी ऐसा मैं निर्णय लूं ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन पूर्ण रीति से मुझे हमेशा परमेश्वर पर ही निर्भर रहना पड़ा. Yeah, I would not pray that for somebody, but I would say that you must pray that for yourself. लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि हम में से हर एक जन अपने लिए यह प्रार्थना करे. That God will break each of us and open only one door at a time. कि परमेश्वर हम में से हर एक को तोड़े हृदय में और हमारे लिए समय के अनुसार एक ही द्वार खोले. Brokenness is not weakness. जो टूटा हुआ हृदय है वो कमजोरी नहीं है. Yeah, but it is reliance on the Lord. लेकिन यह परमेश्वर पर निर्भर होने वाली स्थिति है. It is complete dependence on the Lord. यह परमेश्वर का सहारा और उस पर निर्भर होने वाली स्थिति है. And that is what we as a church have to learn, dear brothers and sisters. और यही प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया होने के नाते यही हमें परमेश्वर से सीखना है. Yeah, there are so many additional families that are part of our church today. और आज हमारे कलीसिया में कितने और अधिक नए परिवार जुड़ गए हैं. Yeah, the natural tendency would be to look at it and glory and say that wow, we have got such a huge number today. और साधारण रीति से अगर हम कलीसिया को ऐसी संख्या में बढ़ी हुई स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं वाह, हम बहुत ही उन्नति मानो पाए हुए लोग हैं. Yeah, but if you all remember 2 Samuel 24, where David is actually looking at his troops and he counts his troops. और 2 सैमुएल 24 के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने अपनी पूर्ण सेना और प्रजा को देखा जो संख्या में काफी बढ़ गई थी और उसने उसकी संख्या लेना आरंभ किया. Yes, that was a time where David truly repented. और वह समय था जब दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया. David truly repented, and we see that he put everybody in trouble and distress. और दाऊद ने सचमुच पश्चाताप किया जिस कारण से उसने अपने पूर्ण लोगों को मुसीबत में डाल दिया था. Yes, when I was reading this story, and sometimes when we talk about all the additional families that come in, it just brings a fear in my heart.
और जब हमारी कलीसिया में मैं विचार कर रहा था कि जब कलीसिया में और परिवार जुड़ गए और कलीसिया संख्या में बढ़ गई है तो एक डर के समान मेरे हृदय में आ जाता है यह वाक्या पढ़कर। The fear is because it is never about the number that really matters to the Lord. और डर इसलिए मेरे हृदय में आता है कि संख्या परमेश्वर की नज़र में महत्व नहीं रखती है। Yeah, but are we really going to the Lord day by day as a family? लेकिन क्या हम सचमुच हर दिन प्रभु के पास जा रहे हैं, एक परिवार बनकर प्रभु में बढ़ रहे हैं? Are we truly living in love? क्या हम सचमुच प्रेम में जी रहे हैं? Or are we just glorying because we have got more of us to worship together and a louder sound coming during worship? और क्या हम इस पर ही घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत संख्या में हो गए, इसके लिए हमारी आराधना में हमारा सुर बहुत संख्या में होने के कारण ज्यादा जोर का हो गया है? Yes, may God really help us, because when the number increases too, there is a very strong tendency of somebody becoming very lonely. और यह बहुत ही अवस्था ऐसी है कि जब संख्या कलीसिया की बढ़ने लगती है कि उनमें से कोई एक अपने आप को अकेला मानो महसूस करने लगा हो। Yes, may God give us a true burden for one another and to really seek out and see where the Lord really wants us to be. और मानो परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसा बोझ दे कि हम एक दूसरे के लिए चाहत रखें और हम जाने कि परमेश्वर हमें कहाँ ले जाना चाहता है। Yes, I was just thinking and meditating on humility, and there was one thing that I read in Isaiah chapter 57. और यशायाह के 57वें अध्याय में मैंने ये पढ़ा जब दीनता और नम्रता के विषय में मैं विचार और खोज कर रहा था। Yeah, Isaiah 57, it speaks about yeah. It talks about it's Isaiah's message to the people of Israel, and it says, verse 15 says, "For this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." यह संदेश है जो यशायाह इज़राइल को दे रहा है। 15 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। Yes, so it talks about God being in the heavens, where it says, "I live in a high and holy place." परमेश्वर जो यह कहता है कि मैं स्वर्ग में और ऊंचे पर विराजमान रहता हूँ। But it says that, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। Yes, the Lord lives in heaven, but He can live amidst us if we are truly repentant and lowly in our spirit. और परमेश्वर स्वर्ग में तो रहता ही है, लेकिन हमारे मध्य भी तब रहेगा जब हम सच में टूटे हुए हृदय के हैं और नम्र और दीन व्यक्ति हैं। And He will be there so that He can revive us, He can refresh us and renew us. और इसलिए वह हमारे मध्य रहेगा कि वह हमें और अधिक हर्षित करे और हमें ताज़ा तवाना करे। Yes, let us truly desire that God would not only be in heaven, but also amidst our families, as more and more people get added, that और यही हमारी हार्दिक इच्छा होनी चाहिए कि न केवल परमेश्वर जो स्वर्ग में तो रहता ही है, लेकिन हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में और हमारे साथ रहे। I just want to read one more verse in Psalms 84. और एक वचन में पढ़ना चाहूँगा जो भजन संहिता 84 के अध्याय में है।
Psalms 84, 1 and 2. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. पहला और दूसरा वचन, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। Yes, even as God breaks us, even as God teaches us how to become more like Him, let our soul even yearn more and more for the living God. और जैसे हमारा हृदय टूटता है, हम दीन बनते हैं, परमेश्वर और हमारे हृदय के मानो नजदीक आए। Let our heart and our flesh really cry out for the living God. सच में हमारा हृदय और हमारा शरीर परमेश्वर के सामने रो उठे। Yeah, the brokenness is not so that we become great, और टूटा हुआ हृदय यह अवस्था नहीं है कि हम बहुत ही महान व्यक्ति बन गए हैं, but the brokenness should be so that we can see God more and more clearly. लेकिन हमारा हृदय टूटा हुआ इसलिए होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की खोज कर सकें। Yes, let us truly pray within, in our personal lives as a church together, that God would continue to work. हमारी हृदय से यह प्रार्थना हो, एक कलीसिया होने के नाते और व्यक्तिगत परमेश्वर से, कि परमेश्वर हमारे बीच हो। He would continue to work. He would continue to break each of us into small pieces, परमेश्वर हम में से हर एक को तोड़े और मानो हमें छोटे छोटे व्यक्ति बना ले, so that we would be broken to see God very clearly and only yearn and desire for Him. और हम जब भी टूटे हुए मन के हो जाते हैं, तभी हम परमेश्वर को खोज कर सकते हैं और से चाहत रख सकते हैं। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। I praise God for all His wonderful works in our lives. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ उस सब अद्भुत कार्यों के लिए जो हम में से हर एक के जीवन में वह करता है। We have heard so many good words from His words. और हमने बहुत ही उम्दे वचन अभी सुने हैं। One question comes to us in the beginning of this year. और इस नए साल के आरंभ में हम सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, Are we really broken क्या हम सचमुच खेदित और टूटे हुए हृदय के हैं क्या? that only every individual can answer for himself? और herself? इसका उत्तर हर एक व्यक्तिगत मनुष्य ही अपने आप को दे सकता है। Could the Lord tell each one of us, क्या परमेश्वर में से हर एक से यह कह सकेगा, like He said to Moses, जैसे उसने मूसा के विषय में कहा, He is the most humble and faithful person in Israel. और पूर्ण इज़राइल में और पृथ्वी पर सबसे दीन और नम्र व्यक्ति और विश्वासयोग्य व्यक्ति वही है। In our fellowship here, could the Lord tell this particular thing to us? क्या इस हमारी छोटी सी संगति में परमेश्वर हमें से हर एक से यह कह सकता है Job was also a broken person. कि तू भी एक टूटा हुआ व्यक्ति है। In the very first place, when he lost everything, और इयोब पहला व्यक्ति था जो बहुत ही टूटा हुआ व्यक्ति बना, जो जब उसने सब कुछ खो दिया, when he started suffering, जब उसने पीड़ाएं भोगना उसकी आरंभ हुआ, his heart became harder. उसका हृदय कठोर हो गया। And the last moment again, और आखिरी में फिर से he understood himself because when he stood before the Lord, और वह अपने आप को जान पाया जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा। he could understand what is he, और वह तब समझ पाया कि वह क्या है। and then he spoke और तब उसने यह कहा that I have seen you today. कि आज मैंने तुझे देखा है। Isn't it this we have heard this morning? क्या यह हमने आज सवेरे सुना है? We heard and we saw in Numbers 12, और गणना 12 में हम यह पढ़ते हैं, the Lord asks Aaron and Miriam and Moses to come to the tent of meeting. Suddenly the Lord said to Moses, chapter 12, verse 4, and suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, Come out you three to the tent of meeting. And there the three of them came out. इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा,
we तुम definitely तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। we remember why the Lord said, हम सब जानते हैं कि यह परमेश्वर ने क्यों कहा, because they went and spoke against Moses, क्योंकि वे मूसा के विरुद्ध में बोल रहे थे and God heard everything. और जो वो विरोध कर रहे थे मूसा, परमेश्वर ने हर एक बात सुन ली। God became annoyed परमेश्वर क्रोधित हो उठा, because they spoke against his chosen person. क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में बात कर रहे थे। Today, आज let us find out ourselves. हम अपने आप को जांच ले, Do we speak against one another? क्या हम एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं? And if we have done, और अगर हमने ऐसा किया है तो from today, इस आज के दिन से in our thoughts, हमारे विचारों में, in our words, हमारे शब्दों में and we have expressed through our works, और हमारे शब्दों से जो कुछ हमने वर्णन किया let है, us fall to the ground हम अपने मुंह जमीन पर गिर पड़े and die to ourselves. और हमारे लिए, हम स्वयं के लिए मर जाएं। This is what the Lord wants. तो यही है जो परमेश्वर हमसे चाहता It है। is not through words that we must be humble. और केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं कि हम नम्र हैं। Let God find out from the thoughts of our hearts that we are humble. परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों से जानकर ये कहे कि सच में हम दीन और नम्र व्यक्ति हैं। I am a very hard speaking person, मैं बहुत ही कठोर तरह से बोलने वाला एक व्यक्ति हूँ, but Lord knows what is in my heart. लेकिन परमेश्वर जानता है मेरे हृदय में क्या है। I cannot say what I am. मैं यह नहीं कह सकता कि मैं क्या हूँ, It is Lord's who is going to judge me. कि परमेश्वर ही है जो मेरा न्याय करने वाला है। The Lord has taken me out from the dust. परमेश्वर ने मुझे राख पे से उठाया है, He has exalted me, मुझे ऊंचा किया है and He has brought me to the knowledge of His Son. और उसने मुझे अपने पुत्र की पहचान दी है। He has put me in a church, मुझे उसने कलीसिया में रखा है, which is the body of Jesus Christ the Lord. जो प्रभु यीशु मसीह की देह है। And I am encouraged one day to hear, मैं एक दिन प्रोत्साहित हो उठा यह सुनकर, like each one of us sitting here, जैसे आज हम में से हर एक यहाँ बैठे हैं, well done, बहुत ही अच्छा किया my faithful servant. मेरे विश्वासु दास। Do we really want to hear such words from the Lord? क्या हम सचमुच ऐसे शब्द हमारे विषय में परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? Many times बहुत ही बार in the church, कलीसिया में each brother praises other brother in front. और हर एक भाई दूसरे भाई को दूसरे के सामने सम्मानित करता है, ऊंचा करता है। Sometimes we feel that we encourage one another by praising the other person. और हमें कई बार लगता है कि हम जिसकी प्रोत्साहन उसे प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिसकी हम सराहना कर रहे हैं दूसरों के These सामने, human praises have no meaning. और हमारे ये जो स्तुति है ये योग्य नहीं है, उसकी कुछ भी अर्थ की नहीं है। We have been asked to praise the Lord. और हम कहे गए कि हम परमेश्वर को स्तुति दें। We have a wonderful Father who is so loving and compassionate. और हमारे पास एक ऐसा महान और दया से भरा हुआ हमारा परमेश्वर पिता है। We must praise Him. हम केवल उसी को स्तुति दें। He has given Himself, He has humbled Himself to come down to this earth. उसने अपने आप को दीन किया है और तुच्छ बना है और वह पृथ्वी पर आया है। In the same place as we are. और इसी देह में जिसमें हम रहते हैं, ऐसी देह में। And He has saved us और उसने हमारा उद्धार किया, हमें बचा लिया from है। all our sins and trespasses. और हमारे सब बुराइयों से और हमारे सब पापों से उसने हमें छुड़ाया है। He has saved us. उसने हमारा उद्धार किया, हमें बचाया है। And He is planning for us और वह हमारे लिए योजना बना रहा है to take us कि हमें ले जाए, to that place उस जगह ले जाए where His presence is there. जहां उसकी उपस्थिति हमेशा रहती है। And I have been encouraged this morning और आज इस सवेरे मैं प्रोत्साहन पाया हूं from the word जो वचन मैंने सुने हैं। in Revelation chapter 4. और प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में We will read from the beginning. हम शुरुआत से इसे पढ़ेंगे। We all are interested हम सब इच्छा रखते हैं, to hear such words. ऐसे शब्द सुनना चाहते हैं। Here it is written, यह लिखा हुआ है, After this I looked and behold, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा, a door standing open in heaven.
कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, and the first voice और जिसको मैंने पहले तोरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, which I had heard speaking to me, जो अपने साथ बातें करते सुना, like a trumpet said, वह कहता है, come up here, यहाँ ऊपर आ जा and I will show you और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा what must take place after this. जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Come up here. यहाँ ऊपर आ जा। It encouraged me. यह मुझे प्रोत्साहित करता है। This is the voice of the Lord ये परमेश्वर की आवाज है speaking बात करते हुए। to Apostle John. यूहन्ना प्रेरित से बातें कर रहा है। I'll tell you, brothers and sisters, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, before this thing happened, यह बात होने से पहले John was given यूहन्ना को दिया गया था, to write letters उसे पत्र लिखने के लिए कहा गया था। to 7 different churches. 7 अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखने के लिए कहा गया था। You all must have read, हम सब ने यह पढ़ा होगा, you must have understood, यह सब हमने समझा भी होगा, and you must be practicing. और हम सब इसको अपना भी लेकर चलते होंगे। And each one of us know और हम में से हर एक जन यह जानता है to which type of church we belong to. किस तरह की कलीसिया से हम संबंधित हैं, What are the deficiencies and lacunas in us? और जो हमारी कमियां और घटियां क्या है, Where are the defects? क्या बुराइयां हमारे अंदर है। Out of 7 churches, 7 कलीसियाओं में से there are 2 only 2 ही कलीसियाएं हैं against whom the Lord has nothing to say. जिन कलीसियाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी बुराई नहीं कहनी है, But there are 5 others लेकिन 5 कलीसियाएं हैं against whom the Lord had something. और जिन कलीसियाओं के विरोध में कहने के लिए प्रभु के पास कुछ है। Today let us each one of us find out आज हम में से हर एक जन ये जान ले what is Lord's परमेश्वर जो कहता है saying against us. हमारे विरोध में परमेश्वर क्या कहता What है, are the lacunae जो in कमियां us? घटियां है हमारे अंदर। Let us ask the Lord हम परमेश्वर से पूछें to refine us, कि हमें शुद्ध करे, to cleanse us, हमें साफ करे and to help us और हमारी मदद करे out of all confusion, और हमारे हर असमंजस में, all doubts, हमारे सब शक में, and help us to know that we are truly born again. और हमारी यह समझने के लिए सहायता करे, मदद करे कि हम सच में नया जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं And let us practice और हम सब इसको अपना कर चलें। all the commands सब आज्ञाएं, from the least to the greatest जो सबसे छोटी से छोटी आज्ञा है और सबसे जो बड़ी बड़ी from आज्ञा this new year, इस नए साल से in order to hear यह सुनने के बाद the Lord asking us, परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, come up here, अब बहुत ऊंचे उठकर आ जाओ, because the Lord is coming soon. क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला He है, will not delay, वह देर नहीं करेगा। but if he is delaying, it Let- is because he wants each one of us to be saved. क्योंकि वह देर इसलिए कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि हम में से हर एक जन बच जाए और उद्धार पाले। Each one will hear हर एक जो यहाँ सुनता है that the Lord is coming कि परमेश्वर आने वाला है and will be taken up. और हम सब उठा लिए जाएंगे। May the Lord open our ears, परमेश्वर हम में से हर एक के कान खोले, circumcise our hearts हमारे हृदयों का खतना करे, to receive his words उसका हम वचन हम अपने हृदय में अपना सकें and help each one of